deeply grateful to the President for the address which she has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 28, 2026. Honorable members, there are 126 amendments to the motion which may be moved at this stage. You have to move the motion only, no speech. Amendment number 1 and 2, Sri A. Rahim, are you moving? Not present. Sri Vikas Ranjan Bhattacharya, are you moving? Not present. Amendments number 3 and 4, Sri A. Rahim, Sriman Vikas Ranjan Bhattacharya, Dr. V. Shivadasan, are you moving the amendments? Not present. It cannot be from there, John Britas, it's not your name, please. Amendments number 5, Sri A. Rahim, Dr. John Britas, are you moving the amendment? Okay. So amendments moved. Amendment number 6 to 12, Sriman Gola Babu Rao, Sriman Gola Babu Rao, not present. Amendment number 13 to 22, Sriman Ramji Lal Suman, not present. Amendments number 23 and 24, Dr. V. Shivadasan, not present. Amendments number 25 to 31, Professor Manoj Kumar Jha, are you moving the amendments? सर विकल्प कुछ नहीं है, मूव कर रहा हूं. Amendments number 32 to 34, Sriman Tiruchi Siva, are you moving? Moved. Amendments number 35 to 43, Sriman Sandosh Kumar P, not present. Amendments number 44 to 48, Sriman Pramod Tiwari ji, are you moving? Yes, sir. Moved. Amendments number 49 to 57, Sriman A.D. Singh ji, Moved. moved. Amendments number 58 to 67, Srimati J.B. Mathur Hisam ji, are you moving? Not present. Amendments number 68 to 74, Dr. John Britash, are you moving? Sir, I am very much moving the amendments. Okay. Moved. Sir, mic भी नहीं है sir आज का. Amendments, your voice has reached, mic is already अभी there. बाद में आ रही है sir, बाद में. I am moving sir. Amendments number 75 to 82, Dr. Kanimoji NVN Somu, are you moving the amendments? Amendments moved. Amendment numbers 83 to 90, Sriman Digvijay Singh ji, Sriman Neeraj Dhangi ji, Sriman Ashok Singh ji, are you moving the amendments? Yes, sir. Moved. Amendments number 91 to 100, Sriman Rajinder Gupta, Yes, sir. are you moving the amendments? I am moving the amendments. Amendments number 101 to 107 by Sriman P.P. Sunir, are you moving the amendments? So amendment moved. Amendment number 108 to 111, Sriman Akhilesh Prasad Singh ji, moving. So amendment moved. Amendments 112 and 113, Sriman Akhilesh Prasad Singh ji, Srimati Ranjit Ranjan ji, are you moving the amendment? Moving. Amendments moved. Amendments number 114 to 120 by Srimati Ranjit Ranjan, are you moving? Amendments number 121 to 126, Srimati Priyanka Chaturvedi ji, are you moving it? Not present. Amendment number 58 to 67, Srimati J.B. Mathur Hisam ji, are you moving? Okay, thank you. Amendments moved. The motion and the amendments moved thereto are now open for discussion. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Mani Sri Digvijay Singh ji, 15 minutes. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय.
अभी मैं सुन रहा था मास्टर सदानंद जी को, जिन्होंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय को लेकर अपनी बात कही। आज से 3 दिन पहले ही महात्मा गांधी की हत्या की जयंती के उसमें पुण्यतिथि पर हम लोगों ने इस बात को समझा कि आखिर किस मानसिकता का वो व्यक्ति था जिसने उनकी हत्या की थी, जिसने पूरा जीवन बिता दिया प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए। उस व्यक्ति की हत्या करने वाले विचारधारा के बारे में उन्होंने बात जो कही है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन प्रश्न इस बात का है, We'll see, we'll examine. अब बात माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज, एक माननीय दिग्विजय सिंह जी, लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज, लीडर ऑफ द हाउस। उपसभापति जी, अभी माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, शुरू में ही उन्होंने जिस तरीके से बात को शुरू किया और उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप लगाया है, कोर्ट्स ने बार बार इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गांधी जी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। इसलिए इस तरह के वक्तव्य और देश को गुमराह करना आप जैसे सीनियर लीडर के लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे विषय एक्सपंज किए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय दिग्विजय सिंह को बुलाऊं उसके पहले आग्रह सभी सदस्यों से, माननीय चेयरमैन ने इस पर बहस शुरू करने के आरंभ में ही 2 रूल का हवाला दिया। रूल 238, जो आप बात कहेंगे उससे रेलिवेंट होगा, जो नहीं होगा वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। दूसरा कहा रूल 235, यानी हम कैसे हाउस में एक डेकोरम का पालन करें। और लास्टली मैं श्री वीवी गिरी का 67 में रूलिंग, जो ऑनरेबल हमारे वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन थे, आई कोट, members who are not in a position to substantiate charges to be made should not make such statements. Allegations and counter allegations of this nature by the members detract from the dignity of the parliament. सबके लिए मैंने ये आग्रह किया। रूलिंग है। माननीय दिग्विजय सिंह, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, चलिए मैं आरएसएस का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उस विचारधारा के बारे में जरूर कहूंगा जिस विचारधारा ने आज पूरे देश में नफरत फैला रखी है, जिस विचारधारा ने भाई भाई को लाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदानंद मार्च साहब ने इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी को भी कोट किया कि गरीब की सेवा करना ही असली धर्म है। बात वही है माननीय सभापति महोदय। मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता है कि आखिर ये 12 साल होने के बाद जो महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण मोदी जी कार्यकाल में रहा है, इन्होंने 2014 में कहा सबका साथ सबका विकास, फिर उसे बढ़ा दिया सबका विश्वास 2019 में, और अब कहा जा रहा सबका प्रयास। मैं माननीय सदानंद जी से मार्च साहब से पूछना चाहता हूं, ये सब में क्या अल्पसंख्यक शामिल हैं? क्या मुस्लिम शामिल हैं? क्या दलित शामिल हैं? क्या ईसाई शामिल हैं? क्या आदिवासी शामिल हैं? ये आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन आपके कार्य, आपकी योजनाएं और आपकी नीतियां ये इस बात से सहमत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं सबका विकास होगा। मैं माननीय उपसभापति महोदय कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि न सबका साथ है न सबका विकास है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी को सबका साथ मिला है क्या? क्या सबका विकास उन्होंने किया है क्या? आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या है माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सौहार्द और समरसता बिगड़ रही है।
और साथ में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये दोनों जो हैं सबका साथ और सबका विकास के खिलाफ इंगित करती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले हुए हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय को आप न्याय दिलवा पा रहे हैं? बिना किसी भेदभाव के सभी का जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है क्या? लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय को समान अवसर व न्याय मिल रहा है क्या? धर्म को देखकर लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। भाई दोषी को दंड मिले, लेकिन उसके परिवार के लोगों ने क्या आरोप क्या दंड देने लायक क्या काम किया है? उमर खालिद और शर्जील इमाम 4 वर्षों से जेल में बंद है, आज तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। हेट स्पीच के बारे में कहा था, हेट एंड हॉस्टिलिटी। हेट स्पीच आप इसके खिलाफ हैं, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी जो बयान दिया है उसके क्या आप समर्थक हैं? क्या उनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर आप मुकदमा दायर करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ तो यह है, साथ में सोनम वांगचुक जैसा एक व्यक्ति जिसने लद्दाख के अंदर एक अपना विशेष स्थान स्थापित किया है, उसको भी क्या कारण है उसको आज जेल में बंद किया हुआ है? उनकी क्या मांग थी? उनकी केवल एक मांग थी कि वे मोदी जी ने जो चुनाव में 6वीं अनुसूची लागू करने का वादा किया था वो निभाएं। पदयात्रा की, प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे, बिना किसी कारण के 100 दिन से वो गिरफ्तार है। क्या सबके साथ उन्होंने, आपके प्रधानमंत्री जी ने क्या इस प्रकरण में क्या न्याय किया है? अब सबका विकास के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक तरफ आर्थिक असमानता तो बढ़ी रही है और उसके अंदर आप देखेंगे कि आज की असमानता ब्रिटिश शासन के समय से भी बदतर हो चुकी है। वर्ल्ड इक्वलिटी लैब के अनुसार भारत में 10 व्यक्ति लगभग 58% राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% व्यक्तियों को केवल 15% मिल पाता है। शेष 10% के पास शीर्ष मतलब जो सबसे ऊंचे दर्जे के 10% के पास 65% संपत्ति है, जबकि निचले 50% के पास केवल 6.4% संपत्ति है। आर्थिक मामलों में जो शासन के आंकड़े दिए गए वो स्वयं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उनकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज पिछले कुछ वर्षों से आयकर जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं उससे ज्यादा आम आदमी टैक्स भर रहा है। कारण यह है कि पूरे तरीके से आज ये सरकार गरीब विरोधी है और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। ऐसे कई आंकड़े मेरे पास हैं जितना मेरे पास समय नहीं है इसलिए सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग परेशान हैं। अगर आप देखेंगे जहां आप 80 करोड़ लोगों को आप फ्री अनाज दे रहे हैं, उसमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। और उसके अंदर भी आप देखेंगे तो आज उनका जो 30 लाख शासकीय नौकरियां खाली हैं, उसमें से बैकलॉग उनका बनता कम से कम 23%। क्या उनका बैकलॉग भरा गया? उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस मामले में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसमें पूरी तरीके से शासन को पुनर्विचार करके उनके पद भरना चाहिए। साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि जहां संवैधानिक अधिकारों को कम किया जा रहा है,
कर्तव्यों को अधिक महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। कर्तव्यों के प्रति हम सजग हैं, लेकिन इतना मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो राइट बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राइट्स जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको किसी तरह से हल्का नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, डिमोनेटाइजेशन में काला धन वापस नियंत्रण में हो जाएगा, नकली नोटों पे प्रचलन बंद होगा, आतंकवाद समाप्त होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन होगा। जबकि उल्टा हुआ है, पूरे तरीके से कैश ट्रांजैक्शन अधिक बढ़ा है। पूरी तरीके से आज अगर हम देखेंगे, आज जो सरकार अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा करती है, तो रोजगार कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजदूरों की संख्या 2011-12 में 12.6% थी, जो अब घटकर 11.4% हो गई है। सर्विस सेक्टर में भी रोजगार 31% से घटकर 29% हो गया। अधिकांश रोजगार जो है आउटसोर्सिंग से दिया जा रहा है, जिसमें नौकरी की गारंटी नहीं है, आरक्षण भी नहीं है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप PMIS में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये 2066 लोगों को इंटर्नशिप दी गई थी, जिसमें से 95 लोगों को केवल जॉब ऑफर हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंदर कितना बड़ा स्कैम हुआ मैं बताना चाहता हूं कि 99% लोगों का एक सेम उनके पास उनका फोन नंबर था। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इसमें भारी CAG ने इसमें भ्रष्टाचार पाया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हालात हैं, उन हालात में हमें इस पर विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लोग कहां पहुंच गए। आज लोकसभा के अंदर भी इस बारे में चर्चा हुई है।